So children, yesterday we had started the revision of the chapter reproduction in plants. In this topic, we had discussed about two methods of reproduction in plants, that is sexual and asexual methods of reproduction. And we had already discussed the differences between the two. हमने दोनों के differences भी discuss कर लिए थे. अगर किसी को कोई query है, you can ask. Otherwise, we will start with asexual method of reproduction और first method जो हमारे syllabus में है, that is fragmentation. So, shall I start with that? हाँ जी बच्ची. What is fragmentation? Firstly, जो word लिखा है उसका meaning clear होना चाहिए. That's correct. हाँ जी श्रेया, speak out. दृष्टि बिल्कुल ठीक है बच्चे. श्रेया, speak out बेटा. मैम हैंड गलती से हो गया था. कोई बात नहीं. दृष्टि, आपने जो आंसर टाइप किया था वो भी ठीक था बच्चे. Now you can speak out also. Yes, ma'am. Fragmentation is the process of breaking up of body of an organism into two or more fragments. Each fragment grows and matures to form a new organism, and it is a very fast process. Yes, fragmentation is basically a method of asexual reproduction. It is a method of asexual reproduction of organism in which an organism breaks into two or more fragments and each fragment grows two or more fragments and each fragment grows into a separate mature form. Yeah, each fragment matures to form separate organism. Different organism या separate organism. This is called as fragmentation, and most common example that we had discussed is Spirogyra. इसकी example जो हमने discuss की थी, it is a Spirogyra. Spirogyra is one of the form of organisms. They are basically a type of plants. ये एक तरह के plants consider करते हैं हम. ठीक है जी? That grows by the in form of due to fragmentation. Okay? इसमें क्या होता है बेटे? What is Spirogyra? If it comes, what is Spirogyra? You can say it is a green color patches that we can see floating on the water body. ठीक है? Spirogyra क्या है? Green colored patches. ये तो नॉर्मली हम सब देखते ही हैं. एल्गी टाइप के जो पैचेस होते हैं, that we can see floating on water. And if you observe ना, अगर आपके आसपास कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको ऐसे पैचेस दिखाई देते हैं, तो try to observe for 1 or 2 days. First day आप देखोगे it is very small. Second day big हो जाता है और within few days ना
वो पूरा का पूरा एरिया फिलअप कर देते हैं। बेटे मैंने यहीं पे लिख दिया दृष्टि, आपका पॉइंट यहीं पे लिख दिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया फिलअप कर देता है। व्हाई? बिकॉज इट इज क्वाइट फास्ट प्रोसेस, it is very fast process. In this process the actual organisms it splits into 2 or more fragments, और हर एक फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। एंड इफ वी विल टॉक अबाउट द डायग्राम पार्ट, तो ऑब्वियसली डायग्रामेटिकल पार्ट्स में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, हमने सिर्फ इतना ही किया था फ्रेगमेंटेशन में। सपोज दिस इज ओरिजिनल स्पाइरोगायरा, these are the cells of matured सिंपली आपको ऐसे करवाए थे, right? Suppose this is the parent cell and this parent cell it simply splits into 2 or more parts. यहाँ पे ये 2 और ज्यादा पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, पर मैं यहाँ पे एक ही पार्ट शो कर रही हूँ, ठीक है। सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ स्प्लिटिंग, अदरवाइज ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, ये सब आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो कैन आई ड्रॉ इट लाइक दिस, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड वन। तो सिंपली हम इसको यहीं से ले लेते हैं, what is this? These are the 2 separate fragments, ठीक है जी। These are the 2 separate fragments and ultimately they grow into a separate individual. Fragments ultimately they grows into an individual. Right? So these are the separate individuals. That is all about fragmentation or Spirogyra. I think it just reminded you. मुझे लगता है ये पार्ट सबको एक बार रिकॉल हो गया। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट है, यू गाइस के नाम है बच्चे, किसी को कुछ? ओके रिकॉल्ड? हाँ जी, that is one of the method. Afterwards, shall we switch to the second method? Sorry. Second method, let's switch to the second method of asexual mode of reproduction, which we call it as spore formation. Spore formation क्या था बेटे? In the spore formation, there is a bulb-like structure. एक तरह का bulb होता है और bulb के अंदर
just very small seed-like structures which we call as spores. They are formed. Spore formation. What happens in spore formation? Hanji, seen on fungi on a bread piece. Even few examples are ferns and mosses. Who can give the answer? What do you mean by the term spore formation? Angadeep. Right, Kushi? It's bread mold. वहाँ पे चलते हैं. Who else can give? Jalash. मैम हाँ जी गुनीत. मैम क्या Yes, please. एक मैम मिनट गुनीत. हाँ जी जलश आप बताइए. Ma'am, it is done in bread mold. It contains a bulb-like structure which contains spores inside it. It bursts opens on maturity and spores spread on all things. And gradually the spores grow and then again they mature. This process continues. That is correct बच्चे, आपके पॉइंट्स गलत नहीं है. So यहाँ पे किसी ने टाइप भी किया है, so I will read that. ये देखो यहाँ पे पूरा टाइप किया है श्रेया ने. Spore formation is a method of asexual reproduction when sporangia burst. Minute single-celled, thin and thick-walled structures called spores. Okay. हाँ जी श्रेया, आपने सिंगल सेल्ड थिन एंड थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स लिखा है. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी द मीनिंग ऑफ दिस? सिंगल सेल्ड का क्या मीनिंग है, या सिर्फ कॉपी करके लिखनी? सिंगल सेल का मैम मैंने इंटरनेट में से देखा था. हाँ तो फिर यहाँ कॉपी कैट बेटा उतनी करो जितना आपको क्लियर हो जाए. आपने यहाँ पे सिंगल सेल वर्ड लिखा है, अदरवाइज सिंगल सेल का मीनिंग मैंने आप सबको क्लियर किया हुआ है. सिंगल सेल का मीनिंग होता है जैसे एमीबा. एमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. याद है हमने उसके फॉर्मेशन की थी, न्यूट्रिशन कैसे लेता है, डायग्राम में किया था ना हमने. दैट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनका एक ही सेल होता है, उनका खाना भी उसी से होता है, एक्सक्रीशन भी उसी से होती है, एवरीथिंग टू बी डन विद दैट. ठीक है. तो स्पोर फॉर्मेशन इज ऑल्सो अ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ asexual reproduction. It is popular for the organisms like is a most common method of is a method of asexual reproduction reproduction. It contains a bulb-like structures inside which spores are protected. It contains a bulb-like structure in which small spores are protected. Spores are protected. And when this matures, and when spore-like structure को क्या बोलते हैं? Sporangium. ठीक है. Spore-like structure, that is sporangium, in which spores are protected. When it matures, हाँ जी श्रेया. Shreya, you can ask. When the sporangium
मैच्योर्स इट बर्स्ट, जैसे मैच्योर हो जाता है इट बर्स्ट and spores they get spread, and these spores they get spread, and under favorable conditions they mature to form a new organisms. जैसे उनको उनकी required conditions मिलती हैं, they form a new organisms, right? This process is called as spore formation. It is most common in किस में होता है? फर्न्स में, मॉसेस में, और जो हम ऑब्जर्व करते हैं जर्नली दैट इज इन ब्रेड मोल्ड. आज की डेट में थोड़ा कम होगा क्योंकि अभी विंटर्स हैं, सामान खराब नहीं होता, लेकिन समर्स में ब्रेड मोल्ड बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है. ब्रेड का एक पीस जो जल्दी से खराब हो जाता है, आप फर्स्ट डे देखोगे एक कॉर्नर पे होता है और सेकेंड डे पूरी ब्रेड में होता है. ठीक है जी, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. और इसका बेटा एक छोटा सा डायग्राम भी है जिसमें स्पोरेंजियम के बारे में बताया हुआ है. यहाँ पे भी लिख लेना बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर ही हमारे स्पोर्स प्रोटेक्टेड होते हैं. यहाँ पे आगे ऐड कर लो कॉल्ड स्पोरेंजियम. ठीक है बच्चे, और कोई डाउट किसी को? सो शेल वी ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस? याद है? हाँ जी बेटा, आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड कम इन टाइम बिकॉज द लेट कमर्स आर देयर और उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी बच्चे. फिर अभी आपके क्लास में लेट कमर्स हैं जो भी एंटर किए हैं क्लास में. So please be take care, come in time, right? So that is about spore formation. एक ऐसा मेथड जिसमें एक स्पोरेंजियम होता है, that is bulb like structure. और अगर हम बात करें just like this, ठीक है, ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है. ऐसा ही एक और बल्ब मैं बना लेती हूँ. These are two bulb like structures, किसी एक प्लांट के, किसी भी एबीसी प्लांट के हैं. और जैसे स्टेम होती है ना प्लांट की, इस तरह से इनकी बॉडी पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. देयर आर थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है जी, एंड दे आर सॉरी and they are attached over here. यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, जैसे ग्राउंड के ऊपर प्लांट होता है ना, but they are also fixed at some point, and from here they are having a small root type structures जिसको हम कहते हैं hyphae. ठीक है, this is called as hypha. This bulb, this is called as sporangium. ठीक है जी, and these stem like structures, ये वाली, they are called as sporangiophore. ठीक है, it is called as, but should I write it over here? It is called as sporangiophore. ठीक है जी,
ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली। ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर। और अगर ये स्पोरेंजियम है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्पोर्स होने चाहिए। सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग फ्यू ऑफ द स्पोर्स ओवर हियर। और कभी भी नोटिस करना बेटे, अगर किसी को मौका मिले ना, नेक्स्ट टाइम ब्रेड आपकी खराब हो जाए ब्रेड मोल्ड में, तो आप एक चीज नोटिस करना कि फर्स्ट डे जब ब्रेड खराब होती है ना, तो वो एक कॉर्नर से खराब होती है। उसके बाद सॉरी, जैसे जैसे वो फंगस ग्रो होती है, यू विल ऑब्जर्व कि थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के उसके पैचेस बनते हैं। एकदम से जैसे एक कॉर्नर से स्टार्ट होती है ना, these are the spores. What happens कि सपोज ये आपका ब्रेड पीस है, ठीक है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि फर्स्ट डे अगर आपका ब्रेड पीस खराब होता है ना, तो वो यहाँ से इस कॉर्नर से खराब होता है। सेकेंड डे जब आप उसको ऑब्जर्व करते हो ना, यू विल सी द पैचेस। यहाँ पे पैच बना हुआ है, कोई यहाँ बना हुआ है, कोई यहाँ बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो एक कॉर्नर में से निकल के जा रहे, रादर वो सारी चारों तरफ फैल जाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बर्स्टिंग। जैसे ये बर्स्ट करते हैं, जहां जहां पे गिरे वहां वहां पे पैचेस बन गए, वहां वहां पे ग्रो कर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। हाँ जी बच्चे, इज देयर स्टिल एनी डाउट इन दिस और इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस श्रेया, आर यू हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? यस मैम। हाँ जी प्लीज। मैम जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो फ्लावर प्लांट में भी होता है? बेटे हम चैप्टर का नाम ही प्लांट्स है, तो फर्न्स और मॉसेस जो होते हैं वो तो पर्टिकुलर प्लांट्स ही होते हैं, और ब्रेड मोल्ड भी इज अ टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। कुछ हद तक एक प्लांट होती है बट इट इज अ नॉन ग्रीन, ग्रीन नहीं होता ब्रेड मोल्ड। ओके मैम। ठीक है जी, चैप्टर का नाम ही जब Yes, ये ma'am. है तो वी आर डूइंग दिस ओनली। सिर्फ प्लांट्स तक हम कॉन्सेंट्रेटेड है। फ्रेगमेंटेशन में जो हमने किया स्पाइरोगारा, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्लांट। देन बडिंग में किया, सॉरी बडिंग अभी पेंडिंग है। स्पोर फॉर्मेशन में हमने ये की है एग्जांपल ब्रेड मोल्ड की, इट इज आल्सो काइंड ऑफ प्लांट, राइट? Okay, ma'am. इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? So shall we switch to the third point? There are still 10 minutes, so we can cover it that. खुशी, राइट साइड ऑफ द ब्रेड तो मैं नहीं कह सकती, राइट लेफ्ट या टॉप बॉटम, वो हो सकता है कि जहाँ पे पड़ी होती है तो वो जगह आपकी ज्यादा वहां पे मॉइस्चर हो। अल्टीमेटली एक और था पॉइंट, मुझे अभी याद आ रहा है आपकी बात से। हाँ जी बच्चे, वाई अल्टीमेटली ये चीज अगर ये स्पोर फॉर्मेशन होती है या फंगस ग्रो करती है, तो हमारी जो फूड आइटम है, ब्रेड है, दैट गेट स्पॉइल्ड, वो ईटिंग के लायक तो नहीं रही है ना, दैट इज नॉट ईटेबल। वाई अ फूड आइटम गेट्स स्पॉइल्ड? मेन रीजन क्या होता है किसी भी फूड आइटम के स्पॉइल होने का? अल्टीमेटली ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया या फंगस या जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने के लिए क्या चीजें चाहिए? एनीवन? व्हाट डज द बेसिक कंडीशंस, यहाँ पे भी लिखा है ना अंडर फेवरेबल कंडीशंस, व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? एनीवन? ये कहीं आएगा नहीं, पेपर में नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओ मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। हाँ जी, दैट्स राइट जलश। ओके अर्शिया, बट दैट्स राइट बच्चे, moisture and air are the basic conditions, and if you want to keep your food item protected, warmth भी है, obviously warmth is also considered over here. अगर आप अपने फूड आइटम को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो ना बच्चे, तो उसका एक रीजन, उसका एक मेथड ये है कि रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम दैट। हाँ, रिमूव मॉइस्चर, अगर आप उसमें से मॉइस्चर पूरी तरह से रिमूव कर दोगे ना,
तो उसमें बैक्टीरिया जल्दी से ग्रो नहीं करता। इवन आज की डेट में जो टिन्ड फूड्स चले हैं, टिन कैन में जो फूड होते हैं वो जल्दी खराब नहीं होते, उसका भी एक रीजन यही है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू with the third method. Third method is budding. What is budding? Who will tell me? Budding seen in the organisms like एक minute. Yeast and forms on the side of parent's body, right? Yes, Ashia. Budding is an asexual mode of reproduction in plants. It is mostly seen in organisms like yeast. In this process, the parent plant grows a small bulb-like structure on any of its sides, and on getting favorable conditions, the bud detaches from the parent's body and grows into another mature organism. If the bud gets enough nutrients, it can also form a chain while being attached to the parent's body. बिल्कुल ठीक है, it gets detached from the parent's body. Budding is again a method of asexual reproduction, mostly seen in the organisms like yeast. हमारे सिलेबस में yeast ही है तो हम yeast तक ही करेंगे। ठीक है, और भी हैं budding से और भी organisms बनते हैं। In the next class you will study about that, right? In this method, the method of asexual reproduction, in which a bud is formed, on the side of parent's body, on the side of parent's body, and under favorable conditions, it grows gradually under, again same words, under the favorable conditions, it grows gradually, grows gradually, matures, and finally detaches from the parent's body. Matures and finally detached from parent's body. Example, it occurs in yeast. Okay, and if we will talk about the budding in yeast, yes Kushi, there are so many examples, लेकिन हमारे syllabus में yeast ही है because we are strict to the plants only. ठीक है, yeast is a type of non-green plant. Okay, basically fungi. It belongs to a type of non-green plants. ठीक है, ये प्लांट्स किंगडम को बिलोंग करता है, इसलिए हमने यहाँ तक स्टिक किया है। बाकी नेक्स्ट ईयर आप करोगे तो आपको और भी एग्जांपल्स बहुत सारी आ जाएंगी। ओके, yes, and if we will talk about the yeast cell, we will observe simply it grows. ठीक है, if the sufficient nutrients are provided to the yeast, the buds, they will start forming further buds. Please इसमें एक चीज और मेंशन कर देना, if sufficient nutrients are there, I think सारा करवाया हुआ बेटे। आई एम अगेन राइटिंग जस्ट टू रिमाइंड यू एवरीथिंग, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी। यस, हाइड्रा, दैट्स ऑल्सो राइट श्रेया, हाइड्रा भी है और हाइड्रा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, sufficient nutrients are there, the buds form
further buds before being detached to the parent's body. Before being detached to parent's body. ठीक है, पेरेंट्स बॉडी से डिटैच होने के बिफोर बीइंग डिटैच्ड टू दी पेरेंट्स बॉडी. क्लियर? जरूरी नहीं है कि बड एक बार बनेगी वो अलग होगी फिर जाके आपका न्यू बड्स बनेंगी, न्यू फॉर्मेशन होगी और उसके कारण दिस प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी रैपिड. काफी फास्ट प्रोसेस होता है क्योंकि पहले एक बनता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट, ये सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं. बच्चे कैन आई रेज फ्रॉम दी अपवर्ड, ऊपर से रेज कर रही हूँ बडिंग की डेफिनेशन. होप यू ऑल हैड डन दैट. So I will start with the single cell because it is a single celled organism. Cell है, nucleus है. I will call this cell as a parent yeast cell, right? तो ये सेल क्या करता है? It simply, ये सेल है, इसके सेल वॉल it starts extending और ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर बना देता है. इसके ऊपर एक बल्ब बन गया, एक बड बन गई एंड दिस इज द न्यूक्लियस. ये भी सेपरेट होकर न्यूक्लियस बन जाता है. तो आई विल कॉल इट एज पेरेंट सेल. कैन आई? ये भी पेरेंट सेल है और ये भी पेरेंट सेल है. ठीक है जी. आफ्टरवर्ड्स देयर आर टू वेज ऑफ इट्स सेपरेशन. इट्स फॉर्मिंग. इसके टू वेज है. नंबर वन, तो ये आपका मेन सेल हो गया, ये आपका डॉटर सेल हो गया. पेरेंट्स और डॉटर्स दोनों आपको मिल गए. ठीक है. बर्ड्स दे सिंपली निप्ड ऑफ. दे सेपरेटेड. ठीक है. सेकेंड मेथड क्या है? These birds, if the sufficient nutrient is supplied, these birds they start forming further buds. For example, एक birds हमारी ये है, ये बन गई और इसके साथ ही इधर से बननी शुरू हो गई. तो काफी सारी लॉन्ग लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं. ठीक है. तो आप ये क्या बन गया हमारा? लॉन्ग चेन ऑफ बर्ड्स. Long chains of birds budding before detaching the parent cells. ठीक है. या birds still attached, यहाँ पे अलग हो गई. birds attached to parent. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज सिंपली, इस डायग्राम किस चीज का है? बडिंग इन यीस्ट. हाँ जी बच्चे, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल एंड द क्लास. वी हैड कवर्ड the three methods of asexual reproduction. That is fragmentation, spore formation and budding. अगर अभी भी बच्चे किसी को डाउट है, you all are most welcome to ask. Otherwise, tomorrow we will continue our topic with next vegetative propagation and sexual methods of reproduction, that is flower. So, shall we end the class? Kindly go through one revision, बच्चे, that will